Good morning, ladies and gentlemen. Warm welcome to another edition of APAC News Network. We have with us today Mr. Bhatia, founder of ControlZ. And ControlZ, incidentally, is a very interesting startup working on refurbished smartphone category. Before we hear from in more details about Control Z, perhaps it makes sense to talk a little bit about APAC News Network. We are a media organization headquartered out of Noida with a pan-India presence, and we focus on technology deployment across government, enterprise, education, BFSI, manufacturing, and startups. We hope to have a nice interaction with you today. Thank you. So, start if you can introduce yourself and then a little bit talk about the origin and genesis of the company and then update on the portfolio solution services. Okay. So hi, my name is Yug and I'm the founder of ControlZ. So the idea of ControlZ came to me about 2.5 years back when I was closely associated with the e-commerce and refurbished industry. And what I saw happening there was not very satisfactory. Uh, and I wanted to change it. The basic insight that I got at that time was that any smartphone, at least in high quality smartphone, can easily be used for 5 to 7 years, very easily. But an average consumer is only using it for 18 months, and matlab, in more premium categories, it's decreasing day by day. So ये जो बॉक्स है सब ये 100% रिसाइकिल पेपर से बना हुआ है एंड दिस इज लाइक अ कार्डबोर्ड पेपर यू विल अंडरस्टैंड दिस FSC approved है पैकेजिंग सो दिस इज नॉट दिस काइंड ऑफ पैकेजिंग यू विल नेवर सी इन अ स्मार्टफोन बिकॉज इसमें सबसे पहली चीज़ हमारी फिर से यही थी कि ऐसा क्या पैकेजिंग बना सकते हैं जिसमें हमें प्लास्टिक नहीं यूज़ करना पड़े क्योंकि सारे स्मार्टफोन की पैकेजिंग या तो मैट फिनिश होती है या ग्लॉस फिनिश होती है दोनों में ही प्लास्टिक इज द प्राइमरी कॉम्पोनेंट आउटसाइड प्लास्टिक इसमें कहीं भी प्लास्टिक का यूजेज नहीं जीरो प्लास्टिक है कम्प्लीटली रिसाइकिल अब बॉक्स में सबसे पहले हमने हमारा वही था दो प्रॉब्लम थी सबसे पहली थी कि कुछ यूनिक बॉक्स बनाना बिकॉज यू आर सेलिंग वी वांट टू गिव ट्रस्ट टू द कंज्यूमर एंड दूसरी चीज़ थी कि विल बी सेलिंग डिफरेंट मॉडल्स बट वी हैव टू क्रिएट वन पैकेजिंग फॉर इट करेक्ट सो कन्वेंशनली पैकेजिंग ऐसे होती है और हर पैकेजिंग का एक स्पेसिफिक मोल्ड होता है बिकॉज इट इज मेड फॉर वन फोन नाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वी रिवर्स दैट वी मेड द पैकेजिंग लाइक दिस और हमने एक ऐसी पैकेजिंग बनाई जिसमें हर फोन इक्वली वेल फिट हो सकता है सो व्हेन यू ओपन दिस डिवाइस this has a space to fit in all kind of device whether it's a 4-inch device or a 7-inch device and when you open it this has a pop-up mechanism और phone बाहर निकल जाता है so have a look at the product so इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ों का भी डिटेल्स का ध्यान रखा है जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग इज समथिंग दैट अ एवरेज कंज्यूमर इज वेरी यूज टू व्हेन ही बाइज अ न्यू फोन अब पॉइंट ये नहीं है कि ये फ़ोन कितना अच्छा है कितना परसेंट महंगा है एंड में जब कंज्यूमर हाथ में लिखा रहा है अगर ये अच्छे से खोलने की फीलिंग नहीं आएगी तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा So, otherwise, this phone will be about 2 years old. ऑन एन एवरेज इट इज़ रफली 2 to 4 years एवरेज आई थिंक 3 साल होता होगा डिपेंड यूजुअली डिपेंड लॉट ऑन द मॉडल्स दैट वी आर सेलिंग सो इसमें अब जैसे कि स्क्रीन कवर भी है इट इज़ ऑल्सो मेड फॉर अ स्पेसिफिक मॉडल दिस स्लाइट लिटिल थिंग now this is not possible if you are doing 1,000 different models now the phone that is in your hand from a hand distance is as good as you cannot tell the difference आप इसको खोल के भी देख सकते हो just remove this protector now what you have in your hand is zero scratches on the screen absolutely zero so you will not feel compromised as a consumer that is the first thing this was always that compromise वाला but दूसरा important since I am buying end of the day a refurbished phone तो मुझे वो जो आप बोल रहे हो 30 से 50% के बीच में that price differential obviously if I'm वो तो buying, है
I look for the वो तो है price ही, difference. वो तो है ही, That is वो the तो main motivator. 100%। अगर वैल्यू नहीं है तो तो- फिर फायदा ही क्या है। दूसरी चीज, अब जो आप इसके प्रोडक्ट में, इसमें 100% बैटरी हेल्थ है। 100% बैटरी हेल्थ एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे दिखने से भी। Exactly. अब इसमें दो चीजें हैं 100%। सबसे पहले तो 100% बैटरी हेल्थ से आपकी लाइफ बढ़ती है फोन की। But ये मतलब when you are refurbishing this, because normally जो पुराना फोन का बैटरी तो नहीं होगा, it will be worn down definitely. So then you are replacing the battery completely. यस, वी रिप्लेस द बैटरीज। सो बैटरीज का क्या है, दो चीज़ें होती है। एक तो इसकी बैटरी लाइफ बढ़ जाती है जो बहुत ऑब्वियस है। दूसरी चीज़ है कि अगर बैटरी लाइफ एक सर्टेन परसेंटेज से नीचे चली जाती है, बैटरी कैपेसिटी, तो वो डिवाइस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है इन एन एग्रीगेशन। और तभी यही होता है कि जब आपका डिवाइस पुराना हो जाता है तो आप कहते हो मेरी डिवाइस की परफॉर्मेंस अब अच्छी नहीं आ रही। दैट हैज नथिंग टू डू विद द CPU और GPU ऑफ द डिवाइस, दैट हैज मोस्टली टू डू विद द बैटरी। सो इफ यू चेंज द बैटरी, दैट प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व्ड। Now, conventionally, refurbished companies don't do that, and that is why we are saying we are not refurbished, we are renewed, because it's a different category based on these things. और आपका सेलिंग मैकेनिज्म क्या है? ई-कॉमर्स ओनली और ऑफलाइन भी Yeah. बेचते हैं? अभी हम सिर्फ डायरेक्ट टू कंज्यूमर ऑनलाइन बेच रहे हैं। इसमें दो पॉइंट रह गए, मैं वो एक बार कंप्लीट करूँ। इसमें जो तीसरी चीज़ है फोन में, हम वो दे रहे हैं 18 महीने की वारंटी, 18 मंथ्स वारंटी। कन्वेंशनली रिफर्बिश मार्केट चलती है 6 महीने पर, और न्यू मार्केट चलती है 12 महीने में। अब अगर मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मेरे को ट्रस्ट 100% देना है, तो ट्रस्ट का ओनली टेंजिबल पैरामीटर इज वारंटी। सो वी सेड कि नया फोन जितना भी देते उससे ज़्यादा ही देना है। So we said 18 month warranty, and we have worked around it, and we feel very confident in delivering it also, because आपको प्रोडक्ट देख के भी पता चल जाएगा। और लास्ट चीज़ जो है, जो बड़ी माइनर चीज़ है, बट द एसेसरीज दैट कम विद द प्रोडक्ट। सो इवन इफ you see the accessories, this is the highest quality accessory that you can find anywhere in the world. So this is a PD charger, this is a lightning to type C cable. This in itself is worth 3,500 to 4,000 rupee in the retail market, and this is what we give even with a 50,000 rupee. 15,000 के फोन में भी 4,000 का अडाप्टर और केबल हम देते हैं। सो ये कॉम्प्रोमाइज फील नहीं होना चाहिए, वो सारी झूठी बातें नहीं होनी चाहिए कि हम चार्जर इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम एनवायरनमेंट बचाना चाह रहे हैं। मतलब इसलिए तुम फोन हर साल नया ले लो पर चार्जर मत लो, क्योंकि उससे एनवायरनमेंट बेस्ट है। तो वी डिडंट वांट टू डू दैट, तो हम वी ऑलवेज वांटेड टू गिव अ कंप्लीट पैकेज। तो ये प्रोडक्ट कितना आईफोन और वन प्लस का बोलो, कितना मॉडल अभी है राइट नाउ अवेलेबल? राइट नाउ हमारी जो D2C वेबसाइट है, इसके अंदर iPhone 7 से लेके iPhone XS तक हम सेल करते हैं, जिसके अंदर लगभग 7 मॉडल्स आ जाते हैं। और वन प्लस का? वन प्लस में हम प्लान कर रहे हैं, अभी हमने लॉन्च नहीं करा, पर उसमें हम प्लान कर रहे हैं OnePlus 5 से OnePlus 6 तक। तो OnePlus 5, 5T and 6, 3 मॉडल्स। सो अगेन सुनने में बहुत कम लग ये सकता है। मॉडल का अभी नहीं? दिस इज OnePlus Nord. नॉट Nord is still selling as a new phone, so एक या 2 साल बाद definitely. एंड ऐसे ऑप्शन है कि कस्टमाइज, जस्ट हाइपोथेटिकली अगर मैं बोलूँ कि इसको आप वो करके गिव मी रिफर्बिश, सो आई वांट टू अ कस्टमाइज्ड वन कि मुझे आप रिन्यू कर दीजिए। मतलब मुझे मेरा फोन रिन्यू करके दे दो? नहीं, वो तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया कि कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन का है ना, तो मैं सिंगल यूनिट का तो सोच ही नहीं सकता। आई हैव टू लुक एट द मैक्सिमम क्वांटिटी आपका पॉसिबल। जो प्रोक्योरमेंट भी हो रहा है वो उसी बेसिस पे हो रहा है। बायबैक यस, प्लेयर्स। तो इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड कर लेता हूँ। हमारे बिजनेस के ना 3 कंपोनेंट है, तीन हिस्से हैं। एक है सप्लाई, जिसमें आप पूछ रहे, आपने क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया। सप्लाई के 2 हिस्से हैं, डिवाइस की सप्लाई और कंपोनेंट सप्लाई। अब जब हम रिफर्बिश की बात करते हैं, हम सिर्फ डिवाइस सप्लाई की बात ही करते हैं, क्योंकि फॉर मोस्ट प्लेयर्स डिवाइस सप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू आवर टीम, कंपोनेंट सप्लाई इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज आवर जॉब इज टू चेंज द कंपोनेंट, नॉट चेंज द डिवाइस। डिवाइस तो जो ऐसा है हम तो वैसे ही रखते हैं। अब कंपोनेंट सप्लाई में अब जो दूसरा हिस्सा है इसका रिन्यू प्रोसेस जो है। अब रिन्यू प्रोसेस हमारा बिल्कुल यूनिक है, क्योंकि हमारा आइडिया ही ऐसा था कि एज गुड एज न्यू बनाना है, तो रिन्यू प्रोसेस ही पूरा नया बनाना पड़ा उसके लिए। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो यही है कि हम डिवाइस पहले नहीं लेते, हम कंपोनेंट पहले लेते हैं, because we have already selected the devices that we can do, therefore we are able to procure component also. अब इसमें क्या होता है, we can procure the highest quality components. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल रिफर्बिशर, अगर कंपोनेंट्स के बेसिस पे आप कर रहे हो, आप आपका इन्वेंट्री कैसे मैनेज कर रहे हो? ग्रेट क्वेश्चन।
अब क्या होता है, एज अ रिफर्बिशर अगर मैं 100 डिफरेंट मॉडल्स कर रहा हूँ, नाउ एवरी फोन हैज 40 डिफरेंट कंपोनेंट्स, सो दैट मींस आई हैव टू मैनेज 40,000 डिफरेंट SKUs which is like which is not OEM भी मैनेज नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल. एंड दैट इज द प्राइमरी रीजन रिफर्बिश एज अ मार्केट इज नॉट गुड इन इंडिया. अब लेकिन हमारा क्या लॉजिक है, हमारे पास कितने मॉडल हैं? 6 और 7. नाउ मल्टीप्लाई 6 और 7 में 30. एंड व्हाट हैपेंस इज, क्योंकि हम 6 और 7 करते हैं तो हम पहले से इन्वेंट्री इसकी ले लेते हैं. इट इज नॉट दैट वी बाय द डिवाइस फर्स्ट एंड देन द कंपोनेंट्स. हमने कंपोनेंट पहले ले लिए, सो दैट इज समथिंग, उससे हमारी इन्वेंट्री. तब तो आप वो लॉजिक ठीक है, बट आप एक्सपेंड नहीं कर पाओगे ना. सी अल्टीमेटली ये पर्पस ठीक है. आई कैन अंडरस्टैंड इट विल बी द हाई एंड फोन ओनली. पीपल विल, मतलब जो ऑलरेडी लो एंड का फोन का फिक्स है, बट इवन हाई एंड से लेट्स कीप इंडियन कंडीशन में एनीथिंग अबाउट 25-30K फोन इज अ हाई एंड फोन. एब्सोल्युटली. तो इवन उसमें भी तो आपका, एंड इवन इफ यू रेस्ट्रिक्ट टू 5-6 ब्रांड्स, मतलब आईफोन छोड़ के आप एंड्रॉयड का जो सैमसंग, वन प्लस, वीवो, ओप्पो, शाओमी, एटलीस्ट 6-7 तो ब्रांड होगा. अगेन यू बी सिलेक्टिव, एक एक ब्रांड का 3-4 मॉडल, फिर भी यू आर टॉकिंग अबाउट 25-30 में. So when you are doing 25-30 and as you mentioned 30-40 components of each, तो मतलब ना चाहते हुए एक्सपेंड करने के लिए आपका वो कॉम्प्लिकेशन तो थोड़ा बहुत तो आएगा ही. बिल्कुल. ये मतलब अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये. अब इसमें क्या होता है सर, एक्सपेंशन किसको बोलते हैं? अगर मैं आज 100 कर रहा हूँ तो मैं 1000 को एक्सपेंशन बोलूँगा, मैं 1000 कर रहा हूँ तो मैं 10,000 को एक्सपेंशन बोलूँगा. अब क्या होता है, जब हम फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर मॉडल कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर मॉडल को हमने एक्सपैंड करना है, दैट इज वेरी इजी. दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू इमीडिएटली. फॉर एग्जांपल, फॉर द कैटेगरी दैट आई एम डूइंग, आई कैन 10x इट इन 2 months, in 3 months, in 4 months. Say let's say अभी का current example, ठीक है, there is an मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं उसी पे category. ही आ रहा हूँ. मैं आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ गया. तो कह रहा हूँ, तो पहला स्टेप तो ये है कि जो करंट को है उसको तो एक्सपैंड करो. अब मैं इसमें आपको थोड़े से नंबर दे देता हूँ. इंडिया में 16 करोड़ स्मार्टफोन बिकते हैं. ऑर्गेनाइज्ड रिफर्बिश मार्केट इज नॉट इवन 0.01% ऑफ दैट. ठीक है, अगर मैं हाईएस्ट सेलर फोन एक उठा लूँ और मैं कहूँ मैं एक ही स्मार्टफोन रिफर्बिश करूंगा एग्जाम्पल, तो भी मैं 5% मार्केट को कर सकता हूँ. लेकिन आज की मार्केट, द आइडिया जो आपका, यही आइडिया है कि मैं सब नहीं कर पा रहा, मैं सब कैसे करूँगा. अब सब करने के चक्कर में आप पहली चीज़ ही नहीं कर पा रहे. और दूसरी चीज़ क्या है सर, आर आइडिया एंड द कॉन्सेप्ट दैट वी आर सेलिंग आर फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे वी वांटेड टू मेक इट अ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट. सो ऑल्दो वी आर सेलिंग इन इंडिया, वी आर ऑलवेज थिंकिंग वर्ल्ड क्लास. अब वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में ये हो रहा है कि सर दुनिया के टॉप 10 सेलिंग फोन्स में 8 phones are iPhones. Can you imagine that? So I have already covered 80% of the market by that logic. इंडियन मार्केट नहीं वैसे कवर होगा, इंडियन मार्केट शायद 5% है, पर वो तो स्टेपिंग स्टोन है. और एक चीज जो इसके लिए आपको टिपिकल दैट जो टारगेट ग्रुप जो टियर 2, टियर 3 छोटे शहर में और ज़्यादा शहर में मिलेगा, एस्पिरेशनल वैल्यू है अभी. इवन स्पेंडिंग परचेस पावर भी है, बट मे बी नॉट एज हाई एज द मेट्रोज. एंड दूसरा अवेलेबिलिटी अभी भी लिमिटेड है, इतना LFRs वो उतना नहीं है. सो इसीलिए द ई-कॉमर्स फिगर्स इन टियर 2-3 cities आर हायर ऑलवेज. सो अगर उस हिसाब से कुछ टारगेट है क्या, और अभी तक जितना आईफोन का व्हाट इज द डेमोग्राफी जो आप आईफोन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं, सिर्फ आईफोन. अभी मैं आईफोन इसीलिए पूछा क्योंकि राइट नाउ यू आर डूइंग ओनली आईफोन, बट आगे जाके भी उसमें प्लान क्या है. नहीं, आपका क्वेश्चन अभी तो आईफोन रिलेटेड. अभी आईफोन का जो मार्केट शेयर इंडिया में वो 5% है. नाउ 5% लुक्स लाइक अ वेरी स्मॉल नंबर, बट देयर ASP is 80,000 rupees. Indian ASP is 17,000 rupees. So when you took आप वैल्यू मार्केट शेयर देखो तो शायद 20% होगा. And another unfortunate reality is कि most people don't buy iPhone in India. They import it, and a lot of that import is not legalized. It's through creation. Now, अब उसका क्या accounting है वो मेरे को नहीं पता, but it's very big.
You can go to any markets, you can see the ground reality. So in ground reality, the value terms में जो Apple का market share है, I can guess it could be as high as 30%, 30-35%. पर नंबर आप खोलोगे तो आपको दिखाएगा वो 4, और पहले तो 3% था, तभी सबके हाथ में आईफोन दिखता है, बट मार्केट शेयर में आईफोन दिखता नहीं. तो आई थिंक ये सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है. दूसरी चीज़ क्या है कि मुझे कोई आईफोन से प्यार नहीं है, लोगों को आईफोन से प्यार है. अब उसका ये मतलब है कि कोई भी डेवलप्ड मार्केट में नंबर 1 आईफोन ही है, वेदर इट इज यूएस, जापान, यूरोप, एनी डेवलप्ड मार्केट. अब इंडिया में भी, जैसे मैंने कहा, इंडिया तो सच एन अनडेवलप्ड कंट्री, फिर भी इतनी लोग आईफोन ले रहे हैं. एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड. प्रीमियम मार्केट में 75% शेयर है एप्पल का. So it is very clear that people want to buy Apple. Now our target audience is not people who buy Apple. Our target audience is people who aspire to buy Apple. अभी आपने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि यार आपका प्राइस क्या है, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है. इसमें सर जो हमारा काम करने का तरीका है, जो हम जिस सोच से हम कर रहे हैं, वो ये है कि हम किसी को सस्ता फ़ोन नहीं बेच रहे. सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन आया कि नया फ़ोन कितने का बिकता है और आप कितने का बेच रहे हो. हम वैसे नहीं सोच रहे कि हम कितना सस्ता बेच रहे हैं, हम उस कंज्यूमर को दे रहे हैं जो खरीद ही नहीं सकता था. तो उसके ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में तब आएगा जब आप 1 लाख रुपए खर्च कर सकते थे तब, लेकिन आपने 60,000 खर्च करे. पर अगर आप 1 लाख खर्च ही नहीं कर सकते थे तो ये आपको तो पहली बार ये चीज़ मिल गई ना, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा. सो आवर टारगेट ऑडियंस इज दैट ओनली. इफ यू लुक एट आवर प्रोडक्ट्स, वी स्टार्ट फ्रॉम 15,000 एंड गो अप टू समथिंग लाइक 40-45,000. वहाँ पे लिमिटेड है, पर जो ASP है वो 20 to 25,000 के अराउंड है. नॉट जो इंडिया में जो आईफोन है दैट स्टार्ट फ्रॉम 45,000. सो ये दो सेम लोग हैं ही नहीं. 45,000 वाला और 20,000 वाला सेम लोग हैं ही नहीं. इंडियन ASP इज एट 17,000. तो जहाँ पे इंडियन मास कंफर्टेबल है, हम बिल्कुल वहीं पे बैठे हैं. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ज़्यादा जल्दी एक्सपैंड कर सकते हैं, जो आपका पहला वाला क्वेश्चन था. अब अगर आप नॉर्मल रिफर्बिश मार्केट का ASP देखो कंपेयर टू आर रिन्यूड, नॉर्मल रिफर्बिश मार्केट टुडे इज एट 6 to 7,000. इंडियन ASP इज एट 17,000. अगर एक बंदा 10,000 का फ़ोन नहीं ले सकता या 6,000 का फ़ोन आज की डेट में नहीं ले सकता, इसका मतलब वो इंटरनेट प्लान भी नहीं अफोर्ड कर सकता. सो देर इज नो पॉइंट ऑफ सेलिंग अ 6,000 रुपी और 7,000 रुपी स्मार्टफोन. And a lot of companies have realized this also. That is why the concept of selling someone who cannot afford a smartphone, जो feature phone पे उसको smartphone देना, has not actually worked. और organized market में तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता. Because when you are selling a 5,000 rupee product or a 6,000 rupee product, your competition is not Amazon, Flipkart. Your competition is unorganized retail की दुकान, और उसको कोई भी नहीं beat कर सकता क्योंकि उसकी कोई cost ही नहीं है. So what we are very clear, we will never be number 1 in terms of market share, but we will always be the best. Our job is to inspire the industry कि this is the level that you can take to. We want to be at the top in terms of quality. तो आगे when you are looking beyond iPhone also to the Android brands, Yeah. so brands, do you expect brands to come to you for certain models to do this? I think that is very much a possibility, but for us as a entity, it is a little far-fetched. But I am sure that this can तो happen. revenue model भी बन सकता है. 100%. There will be obviously some revenue sharing, but मतलब आपको what I'm trying to get is जो इससे scale up that model में X to 10x वो समझ में आ गया the models, but beyond that also. So Yeah. ultimately, for you to sustain the business in the longer run, you need scale up. Absolutely. नहीं, इसमें ये बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी का हिस्सा है. अब इसके अंदर अगर OEM इसका हिस्सा नहीं बन रहा तो अल्टीमेटली ये एक्सपैंड उस लेवल पे नहीं हो सकता, लिमिटेड होगा. तो अब क्या वो इसका पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे वो मैं तो डिसाइड नहीं कर सकता, बट आई एम श्योर कि वंस द कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट तो प्रूव हो. अभी रिफर्बिश, इफ द मार्केट इन इटसेल्फ इज फेज, देन व्हाई विल सम ब्रांड से कि तुम भी मेरा रिफर्बिश, वो तो उसी के लिए नेगेटिव है ना. वंस द कॉन्सेप्ट इज सक्सेसफुल, critical mass of build हो market का. in fact a lot of OEMs do also. If you a lot of OEMs internationally at least partner with a lot of marketplaces to sell brand refurbished products. So that is a very accepted practice and brands would love to outsource this job to a specialist. पर इंडिया में कोई स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं. इंडिया में कौन करता है?
So otherwise, इसके beyond, what are your expansion plans? So, our, like I said, we want to be specialist in this. Now, इसका जो, like I said, इंडिया में 16 करोड़ स्मार्टफोन बिकते हैं. हम उसमें अगर 0.5% भी कर लें तो दैट वुड बी ह्यूमंगस. वो बहुत बड़ी मार्केट है. सो हम बड़ी बातें नहीं करना चाह रहे, हम पहले वो अचीव करना चाह रहे. आवर फोकस इज टू डू लाइक वी हैव स्टार्टेड एप्पल OnePlus, and then sell it online through our D2C website directly to consumer, because we want to own maximum value chain, ताकि हम कस्टमर को अच्छी वैल्यू पे प्रोडक्ट दे सकें. हम वारंटी भी आउटसोर्स नहीं कर सकते. 0.5% means 50 lakhs. तो 80 लाख तक आप डायरेक्ट टू कंज्यूमर कर सकते हैं विदाउट पार्टनर नेटवर्क. एब्सोल्युटली, इट इज़ वेरी मच. आपको मैं एक और फिगर देता हूँ. आज की डेट में मैंने 2 दिन पहले ही आर्टिकल पढ़ रहा था. ऑनलाइन मार्केट हैज ऑलरेडी बीटन ऑफलाइन मार्केट. टुडे मोर पीपल बाय ऑनलाइन देन ऑफलाइन, एंड ऑफलाइन का ESP भी कम है. सो वैल्यू टर्म्स में ऑनलाइन बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है. Established है. स्मार्टफोन में तो everyone is very comfortable buying online. Having said that, in our category trust is a big factor, and therefore we are planning to have our own offline stores. But वो offline stores हम खुद बनाएंगे. We'll make our own offline stores because our idea is about giving the experience. We are planning this within this year. And कहाँ पे? So right now the discussions are in Gurgaon only. Yeah. और आपका जो ये जो that assembling जो होता है, that factories in Udyog Vihar. Yes, that is in Udyog Vihar, and actually we have been doing this for the past 2 years. So it's not that we have started right now. We have only started through our D2C channel, and we have launched the brand right now. Last 2 साल में ये जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ, ये हमने फिगर आउट करी है. तो ये फिगर आउट हमने ऐसे करी है, we partner with lot of marketplaces to sell on their website as a white label product under their brand. In this we have learned supply chain. In this we have made a renew process. In this we have learned all the things that we wanted to learn, and this was a strategy from day one. Using this as stepping stone. Now we have learned it, and we have got great acceptance for the product and even the partnership that we have. तो अब हम confident है, इसलिए अब हम एक नया setup बना रहे हैं. For this will be called Renew Hub. It will be also in Gurgaon only, and this will be state of the art facility. It will be the best thing that you have ever seen in this kind of. It will be the one of the best in the world, not just in India. So that is the kind of facility that we are missing. And इसमें जो facility में भी जो important है, how we, जो हमारा product का pricing है, although it is very close to new, but the pricing is very close to refurbished. अब इतना कुछ दे रहे हैं तो वो प्राइस कैसे मेंटेन होता है, वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है. वो ऐसे आता है कि जो हमारा रिन्यू प्रोसेस है वो हमें इसमें भी हेल्प करता है. वो ऐसे है कि जो हमारा पहला प्रिंसिपल है रिन्यू प्रोसेस का, वो ये है कि जितने कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम रिन्यू करने की कोशिश करें. फॉर एग्जाम्पल 80% ऑफ द डिवाइसेज दैट वी सेल डोंट हैव न्यू डिस्प्लेज. अब आपने ये डिस्प्ले देखा, ये बिल्कुल नया दिखता है, पर ये नया नहीं है. अब हाउ डज दैट हैपन? Because we have limited our 7-8 models. Now we disassemble everything, and we take the high value components, we disassemble those components, we perform renew process on the components also, and then assemble it again. So for example, in displays we disassemble the display, assemble the display, we can take off the scratches from the display. There are a lot of things and technology that we use to make this happen, to make the product like this happen at this price, because otherwise it is not possible. So the new Renew Hub will not be a disassembly assembly place. It will have a lot of different technologies, which will include like anodizing, deanodizing, coloring, assemblies of display, disassemblies of display, lot of these kind of stuff. सारे वो फैक्ट्री में सब कुछ वहीं पे होगा. गुड, ग्रेट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड आप मॉडल और थोड़ा सा ऐड Definitely, we'll try to do that.